Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 29, we are going to see a new problem, that is scrambled string. Okay, so previous standard problem जो हमने DP की देखी थी, that was MCM, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन. ओके, उसके बाद हम क्या देख रहे थे, उसके वेरिएशंस, कैसे हमें उसमें और वेरिएशंस करके या फिर उसी टाइप के MCM के फॉर्मेट के और कैसे स्टैंडर्ड DP के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. ठीक है, तो उसमें हमें एक ये ऑलमोस्ट MCM का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग, जो हम इस प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब मेन जो चीज़ है इस क्वेश्चन में, जो कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझनी है. ठीक है, क्वेश्चन स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग इज ईजी. ठीक है, आई एम सेइंग यू आफ्टर सीइंग दिस वीडियो इट विल बी ईजी फॉर यू, बट जो मेन चीज़ है जो आपको समझनी है इस क्वेश्चन में, दैट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर वो समझ में आ गया ईजिली तो तुम्हारा क्वेश्चन भी हो जाएगा. ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी problem statement of a scrambled string, and after that we will see how it is related to matrix chain multiplication, and then we will build the code for recursion of a scrambled string. Okay, and further video में हम इसको कैसे मेमोराइज कर सकते हैं और कैसे DP का कोड लिखेंगे वो देखेंगे. Before starting this video, let's just see what is Newton School. So basically, as we all know, Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Okay, their first program for you is pay after placement program. So as you can see, application for their pay after placement program for full stack development course is open right now for October batch. So what they do under this program is they will teach you for 6 months and they will make you a full stack developer. Okay, and after making you a full stack developer, not only this, they will also get you placed in these companies which they have tie up with, like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's, Unacademy, TCS, PayU, Nutanix. Okay, so after making you a full stack developer, they will also get you placed in these companies for minimum 5 lakh CTC. Okay, and most amazing thing about their pay after placement program is you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in these companies. So if you want to know more about this, just come to newtonschool.co and apply for their full stack development course for October batch. Okay, second thing they have for you is Launchpad initiative, under which you can start learning for free. If you want to opt any course from computer science, okay, you can just come to newtonschool.co and under Launchpad initiative opt any course and you can do it for free. You will also get certificate after completion of course, and you can also do quizzes here. You also have Newton School ID here, okay, where you can do your coding section, coding part. So and it is absolutely for free. Just come here, log in or sign up for free and start learning. At the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that's Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube channel where we are posting regular videos for you so that you can get regular updates over different topics from computer science. And like we have different playlists for dynamic programming, for DSA, for C++, and for JavaScript also. Okay, so you can just come and subscribe this YouTube channel. Now let's just begin our today's video. So firstly, we are going to understand problem statement of this question, that is a scrambled string. So given two strings S1 and S2 of equal length, the task is to determine if S2 is a scrambled string from form of S1. Okay, so हमें दो strings given है S2 and S1, and we have to determine that if S2 is a scrambled string of S1. Okay, now what is a scrambled string? We have a definition for that also. Given a string str, we can represent it as a binary tree. Okay, so obviously binary tree is a prerequisite, or basics of binary tree is a prerequisite. We can represent it as a binary tree by partitioning into two non-empty substrings recursively. ओके, तो ये स्टेटमेंट अब हम अच्छे से समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग होती क्या है. एंड नीचे एक नोट भी गिवन है दैट स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग इज नॉट सेम एज एनाग्राम्स. ओके, सो आई होप आप लोग को एनाग्राम्स पता होंगे एग्जैक्टली होते क्या हैं. सब मैं ब्रीफ में बताता हूँ. हमारे पास सपोज कोई भी एक स्ट्रिंग है ABCDEF. ठीक है, ABCDEF का कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी परम्यूटेशन, एनी परम्यूटेशन इज एन एनाग्राम. Okay, just a rearrangement of this string is anagram of this string. ठीक है, तो ये एनाग्राम होता है, बट स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं होता. डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट. स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग की हमें एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है जिसको हम अभी समझने वाले हैं. ठीक है, इसी वीडियो में गिवन string str we can represent it as a binary tree.
by partitioning it into two non-empty substrings recursively. ठीक है, now I am giving you an example. Exactly होता क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज न्यूटन, NEWTON, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे इस स्ट्रिंग को टू नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग्स में रिकर्सिवली डिवाइड करते जाना है या पार्टीशन करते जाना है। तो मैंने सिंपली इसको टू नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग्स में पार्टीशन किया, एंड लेट से मैंने इनको ऐसे पार्टीशन किया, एनी एक में डाला, ओके, मैं सेपरेट ले लेता हूँ, एनी एंड WTON, ओके। देन अगेन टू नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग्स मैंने दे दिया NE। अब क्या इससे फर्दर मैं डिवाइड कर सकता हूँ? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। मैंने अगर इसको डिवाइड किया अगेन रिकर्सिवली, तो सपोज मैंने इसको दिया W एंड इसको दिया TON, इसको दोबारा रिकर्सिवली डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं इसको कर दूंगा दैट इज TO एंड N, और फिर इसको अगर कर दिया तो T एंड O। अब क्या ये मेरा एक बाइनरी ट्री बन गया, जिस बाइनरी ट्री में मेरे एग्जैक्टली तुम देख रहे होगे कोई भी डिवीजन है, सपोज ये सब स्ट्रिंग है, इसके जो दो भी चाइल्ड्स हैं ये नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग्स हैं, पार्टीशनिंग इनटू टू नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग्स, ओके। सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, दैट जो मेरा बाइनरी ट्री बने, जो मेरा ट्री बनेगा दैट मस्ट बी बाइनरी। बाइनरी का मतलब इट मस्ट बी हैविंग टू चिल्ड्रंस ओनली, टू से ज़्यादा नहीं, टू से कम नहीं, ओके। सेकेंड थिंग, बाई पार्टीशनिंग इट इनटू टू नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग्स, टू नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग्स, ये एक दूसरी हाईलाइट है, दैट बोथ द सब स्ट्रिंग्स जिसमें भी तुम एक करंट सब स्ट्रिंग को एक करंट प्रॉब्लम को या एक करंट स्ट्रिंग को पार्टीशन कर रहे हो, दैट मस्ट बी नॉन एम्प्टी, ओके। यू कैन सी है 1 2 1 2, ओके फाइन। नाउ अब अगर मैं बोलूं कि ये तो मेरा बाइनरी ट्री बन गया करंट स्ट्रिंग न्यूटन का, अब इससे एक स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग कैसे बन सकती है, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि इस बाइनरी ट्री से कोई भी नॉन लीफ नोड्स उठाओ, कोई भी नॉन लीफ नोड्स उठाओ, ओके, नॉन लीफ नोड्स, एनी नॉन लीफ नोड्स, सपोज आई हैव दिस मच नॉन लीफ नोड्स, एनी, दिस एंड दिस एंड दिस, ये सारे के सारे नॉन लीफ नोड्स हैं, यस नॉन लीफ नोड्स हैं, ओके। तो कोई भी नॉन लीफ नोड्स उठाओ बाइनरी ट्री से, और उनके दोनों चाइल्ड्स में यू कैन परफॉर्म स्वैपिंग, जस्ट परफॉर्म स्वैपिंग इन चाइल्ड्स ऑफ दिस नॉन लीफ नोड्स। इस नॉन लीफ नोड्स के टू चाइल्ड्स होंगे 1 and 2, लेफ्ट और राइट, जस्ट परफॉर्म स्वैप इन बोथ दीज, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मैं इस नॉन लीफ नोड के दो चिल्ड्रंस में स्वैपिंग कर रहा हूँ, दैट इज एनी एंड WTN, तो ये सिंपली क्या मुझे प्रोवाइड करेगा, इट विल बी सिंपली समथिंग लाइक दिस। मैं बोलूंगा कि दिस स्ट्रिंग इज अ स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग ऑफ न्यूटन। सिंपल सी चीज तुम्हें दिख रही है, ठीक है। इफ आई हैव डन स्वैपिंग इन बोथ दीज नोड्स ऑफ दिस, ठीक है, अगर मैंने TON के बोथ दीज नोड्स में स्वैपिंग की, तो सिंपली तुम्हें क्या मिलेगा, TON से एक स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग क्या मिलेगी, NTO, ठीक है। अब अगर मैं NTO को एक चाइल्ड इसका NTO है और एक चाइल्ड इसका W है, तो अगर मैं उसमें स्वैपिंग परफॉर्म करूं, तो इसका स्वैप और इसकी स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग मुझे क्या मिल सकती है, सिंपली NTO और W, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर दैट इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनाग्राम। इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, दैट्स वाई तुम ये कह सकते हो कि कोई भी स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग, दैट एनी स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग इज एन एनाग्राम, बट एवरी एनाग्राम इज नॉट एन स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग, ओके। सो दिस वॉज द मेन हाईलाइट, फाइन। आई होप कि तुम लोगों को स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग समझ में आ गई होगी टिल नाउ, ठीक है। एग्जैक्टली होता क्या है, तुमने अपनी मेन जो स्ट्रिंग है दैट इज S1, उसको बाइनरी ट्री में अरेंज किया सच दैट कोई भी जो दो स्ट्रिंग में तुम पार्टीशन कर रहे हो वो नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग्स हो। सेकेंड थिंग, तुम्हें करना क्या है एग्जैक्टली, तुम नॉन लीफ नोड्स में जो भी चाइल्ड्स दो मिलेंगे उसमें स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हो, एंड यू विल गेट एन स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट स्ट्रिंग, ओके फाइन। तो अब मुझे यहाँ पे एक न्यूटन की एक स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग मिली दिस, ओके, एंड आई कैन से दैट इफ इट इज S1 एंड इट इज S2, देन S2 इज एन स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग ऑफ S1, एंड दिस इज माई कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ओके। ये मेरी कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। अब सेकेंड चीज हमें क्या देखनी है इस वीडियो में, दैट हाउ दिस प्रॉब्लम और हाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू MCM, दैट इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, हाउ इट इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जैक्टली हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में करते क्या थे, हमारा मेन फंडा क्या था मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का, पार्टीशन।
what we were doing is we were taking every partition, or we were considering every partition we can do currently in the current sub problem or problem. Okay, and after considering every partition we were calculating some minimum or maximum thing. Okay, so we were जो main फंडा था MCM का, that was simply partitioning or considering every partition in the main problem and then its two sub problems and recursively until जब तक हम partition कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे scrambled string का recursive tree देखूँ या फिर binary tree देखूँ, तो exactly हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं से इस जो मेन स्ट्रिंग है दैट इज प्रॉब्लम पी बोलो अगर इसको, तो इसको क्या कर रहे हैं, दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. एग्जैक्टली पार्टीशन कर रहे हैं हम दो सब स्ट्रिंग्स में, एंड दोस टू सब स्ट्रिंग्स आर सिंपली नॉन एम्प्टी. ओके, फिर अगेन हम ये अगर मेरी एक सब प्रॉब्लम P1 है एंड सब प्रॉब्लम P2 है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, पार्टाइट कर रहा हूँ, अगेन पार्टीशन कर रहा हूँ सिंपली. तो ये मेरी मैं P1 डैश और P2 डैश बोल सकता हूँ. ठीक है, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मैं सारे के सारे, अब ये जो हो गया ये करंट पार्टीशन, मैंने बोला कि मैंने जो करंट पार्टीशन किया है वो कहाँ से किया है, करंट पार्टीशन यहाँ से, दैट इज एनी को मैंने P1 में दिया और WTAON को P2 में दिया. ठीक है, तो इस पार्टीशन से मुझे कुछ स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी. ठीक है, कुछ स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग्स डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्वैपिंग यू हैव डन इन नॉन लीफ नोड्स, नॉन लीफ इन चिल्ड्रंस ऑफ नॉन लीफ नोड्स. ओके, अब करंट अगर मैं बोलूं कि जो मेरी प्रॉब्लम P थी, मैंने उसमें पार्टीशन कैसे किया, मैंने उसमें पार्टीशन सिंपली कैसे किया, बिटवीन E एंड W, बट here is a possibility that I can do the partition from here also, between W and T. I can do the partition from here also, I can do the partition from here also. So there are how many ways in which I can do the partition, 1 2 3 4 5. क्या मैं यहाँ से पार्टीशन कर सकता हूँ, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज मुझे दोनों चाइल्ड्स नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग्स चाहिए. ओके, सो जस्ट फोकस ऑन दिस दैट आई कैन डू द पार्टीशन इन दीज मिडल इंडेक्सेस ऑल्सो. सो जैसे मैंने MCM में आप लोगों को 10 बार बताया है, 10 सब प्रॉब्लम्स, 10 वेरिएशन प्रॉब्लम्स में बताया है दैट आई हैव टू कंसीडर एवरी पार्टीशन. मैं सारे के सारे पार्टीशन कंसीडर करूँगा. ओके, सारे के सारे कंसीडर करने के बाद एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, मैं अब एक अप्रोच देता हूँ इस क्वेश्चन की आप लोगों को. ठीक है, मुझे S1 एंड S2 गिवन है. ओके फाइन, अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे S2 में या फिर यू कैन से मुझे इन दोनों को स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग चेक करना है दैट दीज टू स्ट्रिंग्स आर स्क्रैम्बल्ड और नॉट. तो सिंपली चेक करो क्या, आई हैव दिस स्ट्रिंग. ठीक है, मैंने पहला पार्टीशन कंसीडर किया, मेरे पास ये और ये पार्टीशन आ गया. ठीक है फाइन, अब इस पार्टीशन के बाद तुम सिंपली, तुम्हारे पास दो सब प्रॉब्लम्स आ गई, उन दो सब प्रॉब्लम्स के लिए तुम क्या करोगे, सिंपली तुम्हारे पास दो सब प्रॉब्लम्स आ गई, फिर अगेन उनकी दो सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. तो तुम्हें ऐसे ही पार्टीशन करते जाना है और सारे के सारे पार्टीशन कंसीडर करके सारी स्क्रैम्बल्ड सब स्ट्रिंग्स मिलती चली जाएंगी. एग्जैक्टली. ठीक है, अब बात रही तुम्हारा पार्टीशन, तो तुम कर लोगे किसी भी तरह. ठीक है, पार्टीशन तो रिकर्जन फंक्शन कॉल करके हम कर लेंगे और कुछ बेस केस डाल देंगे कि हमारी जो चाइल्ड्स और पार्टीशंस हो रहे हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए. ओके, ये कुछ बेस कंडीशंस पड़ जाएंगी. अब मेरी बात आई कैसे मैं स्वैपिंग को कंसीडर करने वाला हूँ, दो चाइल्ड्स में मैं कैसे स्वैपिंग को कंसीडर करने वाला हूँ. ओके, तो देयर कैन बी टू केसेस ऑब्वियसली. ओके, अब उनकी बात करते हैं कैसे मैं स्वैपिंग, सपोज यहाँ से अब मुझे स्वैपिंग को कंसीडर करना. ओके, सो सपोज आई हैव टू स्ट्रिंग्स दैट इज S1 एंड S2. ओके, एंड आई हैव टू सिंपली चेक दैट these two strings that is S1 and S2 are a scrambled string of each other or not, or S2 is a scrambled string of S1 or not. ठीक है, तो मुझे S2 एक scrambled string है of S1 or not, ये चेक करना है. ठीक है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या होगा, S1 में दो पार्टीशन हुए होंगे P1 P2. ठीक है, S2 में भी दो पार्टीशन हुए होंगे P1 डैश और P2 डैश. ओके, नाउ S1 के जो दो पार्टीशन हुए होंगे P1 और P2. ठीक है, और S2 के दो पार्टीशन होंगे P2 और P1 और P1 डैश एंड P2 डैश. ओके फाइन, अब मुझे एग्जैक्टली अगर मेरी सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ ABCDEF एंड इसमें कोई एक स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग EFABCD. ठीक है,
तो एग्जैक्टली अगर तुम देखो क्या, इसका जो दो पार्टीशंस हुए हैं ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है, और इसका दो पार्टीशन हुए ई एफ एंड ए बी सी डी। एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जब S1 के दो पार्टीशन हुए दो प्रॉब्लम में ए बी सी डी एंड ई एफ, इन दोनों में स्वैपिंग हो गई है, ठीक है, और ये ई एफ और ए बी सी डी ये तुम्हारी एक स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग बन गई। ओके, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो हुआ क्या तुम्हारा कि तुमने इन दोनों S1 के दोनों चाइल्ड्स में स्वैपिंग की और तुमने एक दूसरी स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग बनाई, दैट इज फाइन। अब जब तुम इसकी रिकर्जन फंक्शन कॉल करोगे तुम एग्जैक्टली करोगे क्या, P1 दो सब प्रॉब्लम्स के लिए रिकर्जन फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है। दैट इज, अगर मैं बोलूं कि मेरा रिकर्जन फंक्शन सॉल्व S1 एंड S2 था राइट नाउ, ठीक है, एंड ये फंक्शन बूल टाइप का था और ये मुझे रिटर्न करता था ट्रू और फॉल्स। अगर S1 S2 इसकी स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग है दैट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसके पार्टीशंस के लिए चेक करूंगा, जो दो इसके पार्टीशन है दैट इज P1 एंड P2, ठीक है। तो अब इसके P1 और P2, सपोज ये मेरी S1 स्ट्रिंग थी, इसके दो पार्टीशन थे P1 P2, और ये S2 स्ट्रिंग थी, इसके दो पार्टीशन थे P1 डैश P2 डैश। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्वैपिंग हुई हो ए बी सी डी और ई एफ में, ठीक है। अगर स्वैपिंग हुई है दैट मीन्स ये जो तुम्हारी P1 थी ये किसके बराबर हो गई होगी, दिस सब स्ट्रिंग के इक्वल, अगर स्वैपिंग हुई है, ठीक है। और अगर स्वैपिंग नहीं हुई तो P1 किसके बराबर होगी, इसके बराबर, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशन है रिकर्जन के अंदर, दो कंडीशन है कॉल करने के लिए, दैट इज स्वैपिंग इज डन एंड स्वैपिंग इज नॉट डन, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं स्वैपिंग इज डन। इफ स्वैपिंग इज डन तो P1 को अब हमें किसके इक्वल चेक करना है, P1 को अब हमें चेक करना है P2 डैश के इक्वल, एंड P2 को किसके इक्वल चेक करना है, सिंपली P1 डैश के इक्वल। ओके, इफ स्वैपिंग इज डन, और इफ स्वैपिंग इज नॉट डन तो हमारी जो दो स्ट्रिंग्स हैं S1 एंड S2 दैट वुड बी सेम A B C D E F, और S2 भी सेम होगी A B C D E F, है ना, फाइन। तो अगर स्वैपिंग नहीं हुई तो हमें किसका चेक करना पड़ेगा, P1 को सिंपली P1 डैश के साथ और P2 को सिंपली P2 डैश के साथ, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या हम इक्वलिटी चेक करने वाले हैं, दैट इज रिकर्जन फंक्शन में हम क्या इक्वलिटी चेक करने वाले हैं। फर्स्ट केस में मैंने बोला कि P1 को तुम्हें P2 डैश के साथ चेक करना है, ये P1 ये P2 डैश, तो तुम सिंपली रिकर्जन फंक्शन में क्या कॉल करोगे, सॉल्व P1 एंड P2 डैश, ओके। एंड अगर ये इक्वल है प्लस दिस थिंग इज ऑल्सो इक्वल इन द सेंस दैट P1 का जो स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग है वो P2 डैश है, ठीक है, और P2 का जो स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग है वो P1 डैश है, दैट इज एंड लगाओ बीच में एंड सॉल्व P2 एंड P1 डैश। अगर ये है इट सिंपली मीन्स कि जो तुम्हारा सॉल्व S1 S2 है, जो इसका मेन प्रॉब्लम था दैट इज P, वो भी स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग है, S2 S1 का एक स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग है, एंड इन दैट केस यू विल सिंपली रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो ये मैं इसके दो रिकर्जन कॉल बता रहा हूँ सब प्रॉब्लम्स के लिए। ये हो गया मेरा फर्स्ट रिकर्जन कॉल, ठीक है, जब मुझे स्वैपिंग हुई है, और जब स्वैपिंग हुई है आई हैव टू सिंपली कंपेयर P1 विद P2 डैश एंड P2 विद P1 डैश, ओके फाइन। इन सेकेंड केस ईजी है तुम्हारा, तुम्हें सिंपली P1 को P1 डैश के साथ कंपेयर करना और P2 को P2 डैश के साथ, ठीक है। उसके लिए आई होप तुम लोग यहाँ से लिख लोगे। अब मैं इसका शॉर्ट में तुम लोगों को रिकर्जन कोड दिखाता हूँ और वहाँ पे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हियर इज द कोड फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। अब मैंने एक बूल स्क्रैम्बल फंक्शन बनाया जिसमें मैंने दो स्ट्रिंग्स पास की एंड आई हैव टू सिंपली रिटर्न ट्रू इफ S2 इज ए स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग ऑफ S1, ठीक है। अब मेरे बेस केसेस चेक करते हैं। अगर मेरे दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ ही इक्वल नहीं है इट सिंपली मीन्स कि स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग हो ही नहीं सकती, इन दैट केस आई विल रिटर्न सिंपली फॉल्स। ये चीज़ कॉमन सेंस वाला बेस केस था, ठीक है। अदरवाइज मैंने सिंपली एक चीज़ क्या कंडीशन बताई थी कि स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग में कभी भी जो दो तुम चाइल्ड्स चेक करोगे कि वो स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग है या नहीं, ठीक है। तो अगर सपोज कोई दो एम्प्टी स्ट्रिंग है और तुम उनको कंपेयर कर रहे हो स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग, तो इट विल सिंपली रिटर्न ट्रू बिकॉज एम्प्टी स्ट्रिंग एक दूसरे की स्क्रैम्बल्ड हमेशा होंगी, ठीक है।
एंड थर्ड केस कैन बी इफ S1 इज इक्वल्स टू S2. अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली दे आर स्क्रैम्बल्ड ऑफ ईच अदर. उसके बाद तुमने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग्स की कॉपी बना ली, कॉपी ऑफ S1 एंड कॉपी ऑफ S2, और दोनों को सॉर्ट कर दिया. और सिंपली तुमने चेक कर लिया कि अगर अब भी तुम्हारी दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है, दिस इज द केस जब तुम्हारे कैरेक्टर्स सेम नहीं है स्ट्रिंग्स में. दैट इज पहली स्ट्रिंग ABCD है और दूसरी स्ट्रिंग EFGH है. तो यू आर सिंपली चेकिंग दिस थिंग इन दिस स्टेटमेंट कि अगर तुम्हारी दोनों स्ट्रिंग्स में कैरेक्टर ही डिफरेंट है, इन दैट केस ऑल्सो यू विल रिटर्न फॉल्स. अदरवाइज तुम्हें सिंपली करना क्या है, 1 से n तक जहाँ जहाँ पे तुम मेन स्ट्रिंग में पार्टीशन कर सकते थे. सपोज दिस इज तुम्हारी मेन स्ट्रिंग S, ठीक है, ABCDEF, यहाँ पे एक पार्टीशन, यहाँ पे n-1 तक तुम पार्टीशन कर सकते हो. तो 1 से n तक पार्टीशन. पहला केस तुम क्या चेक कर रहे हो, जब तुम्हारा स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है. अगर तुम्हारा स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुआ तो तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, P1 को P1 डैश के साथ तो कंपेयर करो, इज स्क्रैम्बल. S1 P1 की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 इंडेक्स से शुरू एंड I लेंथ, क्योंकि तुमने पार्टीशन कहाँ पे किया है, I इंडेक्स पे. और S2 में सिंपली P1 डैश सब प्रॉब्लम. बीच में कंडीशन होनी चाहिए एंड, बिकॉज ऑब्वियसली इफ दिस इज योर S1 एंड दिस इज योर S2, तो ये और ये दोनों एक दूसरे की स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग होनी चाहिए, तभी जो तुम्हारा मेन प्रॉब्लम P है वो भी तुम्हारा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है. तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ अगेन. ओके, तो ये तुम्हारा केस हो गया जब तुम्हारी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई है. इन दैट केस यू आर सिंपली गोइंग टू कंपेयर P1 विद P1 डैश एंड P2 विद P2 डैश. ओके, दिस इज द केस व्हेन स्वैपिंग इज डन. तो स्वैपिंग अगर हो गई है तो यू विल सिंपली कंपेयर P1 विद P2 डैश. तो यहाँ पे अब देखो, S1 से मैंने क्या ली, P1, दैट इज 0 इंडेक्स से I लेंथ की, ठीक है. और S2 से मुझे क्या लेनी है, P2, दैट इज पीछे से मुझे I लेंथ की सब स्ट्रिंग कंसीडर करनी है फ्रॉम बैक साइड. इन स्ट्रिंग S2 मुझे बैक साइड से पीछे से I लेंथ की स्ट्रिंग कंसीडर करनी है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम n-I इंडेक्स द लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग विल बी I. एंड अगेन मुझे फिर P2 को P1 डैश के साथ कंपेयर करना है, तो आई विल सिंपली राइट दैट दिस थिंग. एंड इफ ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो सिंपली रिटर्न ट्रू. ओके, एंड एट द एंड अगर मुझे कोई भी पार्टीशन ऐसा नहीं मिला जहाँ से स्वैपिंग परफॉर्म करके या स्वैपिंग नॉट परफॉर्मिंग मुझे S2 एज ए स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग ऑफ S1 मिल रही है, तो आई विल सिंपली रिटर्न फॉल्स, ठीक है, अगर कोई भी पार्टीशन ऐसा नहीं है. So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt you can just ask me in comment section. हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसका मेमोराइजेशन लिखेंगे वहाँ पे एक बार ब्रीफ में प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिकर्जन फिर से देख लेंगे, सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी और क्लियर मी इन दैट वीडियो. एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग. इफ यू हैवंट चेक न्यूटन स्कूल yet, just go to newtonschool.co, check their pay after placement program, and application for full stack development course October batch is open also right now, so you can apply if you want to get placed in these different companies. And if you haven't checked Launchpad initiative yet, just go and check their Launchpad initiative, and just go and subscribe this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School. Thank you guys for watching.